اہل ایمان کے لیے اس کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر، ساری نعمتیں جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے بڑھ کر سب سے خاص اور جو اہم نعمت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دیدار۔ میں اس وقت ایئرپورٹ کی پارکنگ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ آیا میں میٹرو پہ، یہاں پہ گاڑی مجھ سے پہلے پہنچ آئی، گھر کی گاڑی تھی۔ تو میرے دل میں ایک شدت کے جذبات تھے کہ جو بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار کر کے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس آئے، میں اس کو ملوں، دیکھوں۔ ایک مرتبہ، بلکہ ایک مرتبہ نہیں، بہت بیسیوں مرتبہ ایسا ہوا کہ میں یہاں پہ آیا ایئرپورٹ پر، بہت سے حاجیوں کو ہدیہ تبرک پیش کیا، سلام عرض کیا، ان سے دعائیں لی۔ مجھے کوئی اس طرح کی وہ جو سکون کی کیفیت ہے وہ ملی نہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ فیملی میں بھی کچھ لوگ آتے جاتے رہے، صورتحال ایسی۔ آج ہمارے اپنے عزیز ہی ایک بڑے، بہت ہی زیادہ انتہا درجہ کے وہ عاشق رسول ہیں۔ وہ جس کیفیت سے ان کا سفر ہوا اور جن جن کیفیات میں انہوں نے وہاں پر وقت گزارا، وہ ساری کیفیات سمیٹ کر آج وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے یہاں پر باقی لوگ تو آئے، لیکن میں رہ گیا تھا۔ حادثہ یہ ہوا کہ ان کے لیے کچھ چیزیں جو منگوائی تھی گھر والوں نے، وہ جو مجھ سے پہلے پہنچ آئے اور میں گھر ہی تھا تو وہ چیزیں کچھ بھول گئے۔ مجھے کہا کہ میرے اندر ایک جستجو سی، بہت زیادہ تجسس کہ میں جاؤں، دیکھوں، ان سے ملوں۔ تو ایک عجیب سی کیفیت بنا کے میں بس گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اچانک کال آئی کہ آپ فلاں چیز ہم بھول آئے تو آپ لے کے آئے۔ تو پھر میں میٹرو پہ بیٹھ کے یہاں پہ آ گیا۔ میں حیران ہوں ناظرین کہ یہاں پر مختلف کنٹریز سے لوگ آتے ہیں، میں جا کے دیکھتا ہوں اور ان کے چہروں پر جو تاثرات ہیں وہ، اور ان کے چہروں پر جو تاثرات ہیں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگری سے آئے، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے ناظرین۔ یعنی کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ میں بلکہ آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی دوں، یہ جو لائن، یہ جو اپنا جو اس وقت آ رہے ہیں، تو یہ جو رائٹ ہینڈ پہ جو میرے سامنے بالکل جو ہے، یہ سارے کے سارے عازمین حج اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آنے والے معزز مہمان گرامی اور حاجی اور حاجیات، وہ سارے جناب تشریف، ان کے استقبال کے لیے یہ لوگ رہے۔ تو میں حیران ہوں کہ جو لوگ پھولوں کے ہار اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، ان لوگوں پر ایک بندہ یہاں پر مجھے ملا۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں آئے، کہنے لگا کہ ملائیشیا میں میرا بیٹا تقریباً، بوڑھے بابا تھے، انہوں نے کہا تقریباً پچھلے 20 سال سے ملیشیا گئے، تو پھر ملیشیا کے ہو کے رہ گئے، تو بڑی ہم نے آہو بھگت کی اور بڑی منت سماجت کے بعد وہ پھر واپس آئے، تو آج انہیں ریسیو کرنے آئے۔ خوشی تھی ان کے چہرے پر، لیکن وہ خوشی جو میں دیکھ رہا ہوں ان مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے، جن لوگوں کے، مثلا میں اس وقت حشاش بشاش ہوں، میں جنہیں ملنے آ رہا ہوں، ہمارے فیملی کے لوگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، لیکن میرے گھر کے سگے نہیں ہیں، لیکن جس در سے اور جس دربار سے نسبت لے کر آ رہے ہیں سفر کی، اپنے سفر کی، اپنی کچھ وقت قیام کی، تو وہ نسبت اتنی عظیم ہے کہ اندر ایک قلب میں سکون سا وفا کرتی ہے۔ جس وقت میں نے بھائی کو یہاں سے رخصت کیا تو واپسی پہ گاڑی میں ایک نعت لگی، ارے حاجی ہو تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک
पैगाम अर्ज करना, ये कहना कि आका के एक गुलाम आपका सलाम अर्ज करता है, इस तरह की नात। तो मैं सुनता जाता था, रोता जाता था। कैफियत ही अजीब होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने घर की, अपने दर की हाजिरी जवानी में तो नसीब करे, बहुत बड़ी शहादत की बात है। हाय हाय। और वो ना हो तो जिन लोगों को हम मस करते हैं, वहां से वापस आने वाले लोग, वो लोग जिन्होंने उस सरजमीन को मस किया है, जो उस सरजमीन के मुसाफिर रहे, जो उन गलियों में चंद दिन, चंद सातें जिन्होंने गुजारी, जिन्होंने क़याम किया, उन लोगों को जिनको हम मस करते हैं, अल्लाह करीम हमारा उनको मस करना भी कबूल फरमा ले। बहुत बड़े शहादत की बात होती है नाज़रीन। ये इतने बड़े शहादत की बात है कि अहले ईमान के लिए कायनात की सारी नेमतें एक तरफ रख दें, तो अल्लाह के घर का तवाफ और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की हाजिरी, उस घर की हाजिरी एक तरफ, तो कायनात की सारी नेमतें जो है वो कहेंगे कोई चस नहीं है, कोई सुकून नहीं है उन नेमतों का, जो नेमतें हमें इन दो सूरतों में मिली। एक अल्लाह के घर का दीदार और एक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दीदार और हाजिरी। तो अभी उनके आने का वक्त हो गया, हम भी आपसे इजाजत चाहेंगे। कुछ ईमानी कैफियती बातें, ईमान की कैफियत में कुछ ईमानी बातें, कुछ रूहानी और विजदानी बातें जो है दिल चाह के आपसे शेयर करूं। और जब कभी किसी ऐसे मुसाफिर को रुखसत करने की शहादत मिले ना आपको, तो नाज़रीन कोशिश किया करें, दिल की कैफियत अल्लाह बेहतर जानता है। कोशिश किया करें कि उसकी जूतियां उठाकर आप बस जिस वक्त वो अंदर दाखिल हो जाए, हमारा उससे राब्ता बिल्कुल मुनक़ते हो, वहां तक आखिरी जो उसकी जो यहाँ से मेन इंटरेस्ट क्रॉस करेंगे, अंदर जाएंगे, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जब वो अंदर चला जाता है, हवाले हो जाता है उनके, तो उस मुसाफिर की जुतियां कोशिश करके कि मुझे शहादत मिलनी चाहिए और आप मुझे ये शहादत बख्शे, मैं आपकी जुतियां कम से कम यहाँ तक उठा के, तो जब वापस आए तो फूलों के हार तो निछावर होते ही हैं। ये तो जाहिर है कैफियत ही कुछ इस तरह की होती है कि इंसान कहता है कि सारा सरमाया जो है वो इस पर निछावर करे, तरह तरह के फूल, तरह तरह की खुशबुएं, तरह तरह के अत्र वो इन पर लगाए, और लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जब वो वापस आए तो जो जुतियां उस बारगाह, उस दरबार, उस नगर, उस घर, उन गलियों का सफर करके आई है, वहां से मस होके आई है, उन्हें उठा के वहां तक ले आए जहां तक उन्होंने जुतियों के बगैर पैदल सफर करना उन्हें आसान लगता। ये कम से कम ये बहुत बड़े। एक होता है जैसे आजकल जो उम्रा या हज, बहुत सारी चीजें जो है वो रिवायत में इस तरह भी शामिल हो गई हैं कि आम सी एक रिवायत है, रिवाज है, कुछ चीजें रिवाज बन जाती हैं। इसी तरह हज उम्रा भी मौजूदा दौर में एक रिवाज भी है। कुछ लोग इसको जरूरत समझ कर करते हैं। जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आप उसके लिए बेचैन रहते हैं। आपके दिल की कैफियत ये होती है कि आपको तड़प पैदा होती है, तो मुझे पानी की जरूरत है, होंठ खुश्क हो जाएंगे, जुबान खुश्क हो जाएगी, और मेरा जो मैदा है उस चीज की तलब करेगा कि अब जिस्म को इस खुश्की के बाद अब तलावत की जरूरत है, वरना बेहोशी तारी हो जाएगी। कैफियत होती है ना हर चीज की, जो डिमांड है, जिन जिन चीजों की डिमांड्स आती हैं
उस लिहाज से तकाजे और कैफियत और ज़रूरियात और हस्ब ज़रूरियात वो सारा कुछ बदलता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें इंजॉयमेंट के लिए भी होती हैं, एक आम सा रिवाज पूरा करना होता है। मतलब पानी की मुझे ज़रूरत नहीं है, वैसे पी लिया, वैसे पी लिया। मुझे पानी की ज़रूरत 1 घूंट है, मैंने जनाब आधा घूंट पी के बाकी फेंक दिया। मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने खाना वैसे जनाब 2-4 नवाले चख लिए। कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं। उस भूखे को जो शदीद ज़रूरत महसूस करता है खाने की, जब उसे मिलता है तो उसकी फिर लज्जत, उसको मिलने वाली जो लज्जत है उस खाने से, वो उससे पूछे कि कैसी है। प्यासे को जब पानी मिलता है, ज़रूरतमंद प्यासे को जो बेचैन है, तड़पता है, तो उसे जब पानी की घूंट मिले तो उससे पूछे कि कितना खुश होता है। और इसी तरह फिर वो जो इंजॉयमेंट करते हैं। बिटिया आ गए? ये लो बिटिया, किस वक्त आएंगे? मुझे बता देना लाल, क्या चीज़? इस वक्त आए ना मुझे बताना लाल, ठीक है? बैठता है गाड़ी में? ठीक है, चल पापा नहीं है? बैठता है? अच्छा ठीक, बैठता है? आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। तो नाजरीन, अच्छा खामोश होके बैठेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो नाजरीन, मैं बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें ज़रूरत की होती हैं। इसी तरह हज, उम्रा, ये कुछ लोगों की इंतहाई ज़रूरत होती है। और जो लोग इस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं तो वो फिर जी जान लगा देते हैं। फिर वो अपना सारा सरमाया वो सबसे पहले इकट्ठा करते हैं। सरमाया इस काम के लिए कि मैं मकान बाद में बनाऊं, पहले ये शहादत हासिल करूं, पहले उस घर की हाजिरी और तवाफ करूं। फिर वो इस कोशिश में रहते हैं कि मैं दुनिया के जितने भी काम हैं उन्हें गैर ज़रूरी समझूं, ये ज़रूरी करूं। कैफियत होती है। तो अभी हमारे जो मेहमान हैं उस पाक सरज़मीन के मुसाफिर, वो भी तशरीफ़ लाने वाले, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि जब कभी आपको उस घर की, उस दर की हाजिरी नसीब हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक खास ईमान की कैफियत में अपने पास बुला ले। मैं तो ये दुआ करूँगा अपने लिए, अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप भी यही दुआ करें और इस पर आमीन कहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का खात्मा ईमान फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का जो मुझे देखेंगे। अभी तक तो फ़िलहाल कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो देखेंगे तो उनका देखना, उनकी दीद और दीदे नज़र जो है उनका मैं मशगूल हूँ। एक ये मैं नात कभी आपको सुनाऊंगा। अरे खाजियो तुम हरम जा रहे हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज़ करना। अरे हाजियो तुम हरम जा रहे हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज़ करना। नाज़रीन, बाकी जो मुकम्मल नात है वो मैं तैयार करके बाकायदा याद करके एक कंटेंट हर्फ बहर्फ इंशाअल्लाह आपको किसी दिन ज़रूर सुनाऊंगा, किसी दिन लाइव सुनाऊंगा। एक और अच्छा कलाम है, बहुत बेहतर कलाम, बहुत आला कलाम। ईमान की कैफियत आए बदल जाती है, दिल की कैफियत इतनी आला और बेहतरीन हो जाती है कि आप यूँ समझ लें कि ब्लड को आप सिर्फ दिल को आप सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन का हेड ही समझते होंगे, लेकिन खुदा सुनेंगे तो फिर आप कहेंगे यार ये दिल तो और भी बड़े बड़े काम करता है। तो अल्लाह हम सब का हामी नासिर। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।